कहाँ पे गए सब लोग बाकी के? यस, वेयर आर अदर्स? चलो लेट्स कंटिन्यू विद द डाउट। उसका डाउट क्या था? उसने कुछ मॉड्यूल का थ्योरी पढ़ा एंड उसको ये चीज समझ में नहीं आया था। He said in case of transpose of matrix, if I take A is equal to Aij, then and B A dash is equal to Bij, Bji, then Aij and Bji are same. This is your doubt, है ना Sayam? All right. Okay, class ended at 6:14. All right. I can understand. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मेरा मैट्रिक्स है एंड Bij एक मिनट, it should be Bji. That is mistake. It should be Bji. Sayam. हाँ, yes. Today we are going to start with a new chapter for जो भी लेट ज्वाइन हुए हैं उनके लिए बता रही हूँ. बस एक कुछ डाउट है वो मुझे डिस्कस करने दो. It should be Bji. Sayam. ठीक है. तो A dash क्या हो जाएगा? What is A dash? यहाँ पे Bij चाहिए और यहाँ पे Bji चाहिए. तो yes, A dash is what? Row is going to be column. Row is going to be column. Row is going to be column. All right. Okay. All right. Now, what is Aij? Let's consider this as A11. A11 is what? Or else I will mark it with different color. Let's take it as blue letter. This is what? A11. This is A12. This is A13. This is A21. This is A22. This is A23. This is A31. This is A32. And this is A33. अब इसको उन्होंने Bij बोला है ना? So let's make it B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33. अभी अगर तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया तो तुम्हें समझ में आएगा. क्या चीज समझ में आएगा? देखो, look at this. This A12 is nothing but B21. है ना? This A13 is nothing but A31. This A21 is nothing but B12. Getting my point? तो हो क्या रहा है यहाँ पे? What is happening? What is happening? अगर ये A12 की बात कर रहा है तो B21 सेम है. अगर ये A13 की बात कर रहा है तो B31 सेम है. Getting my point, Sayam? Getting my point? उन्होंने क्या बोला है? Aij is equal to Bji. So that means what? A12 is B21. Verified? A12 is what? B21. Next, A13 is B31. Verified? A13 is B31. Understood the definition? ये मॉड्यूल से उसने कुछ थोड़ा थ्योरी पढ़ने की एफर्ट्स लिए तो उसमें से हमें ये चीज उसने डाउट एज अ डाउट पूछी है. तनीषा, डोंट टेक एनी टेंशन. Yes, I have understood. Understood everything why they have stated like that. Okay, so just I and j के values रखो और verify करो. You will get the same thing. Okay. और कुछ तो भी डाउट था तुम्हारा. What was that doubt? Let me check. मुझे ये एग्जाम्पल का आंसर रॉन्ग लग रहा है. मेरे हिसाब से x is equal to 3 and y is equal to 1 आना चाहिए. ओके, x is equal to 3 and y is equal to 1 बोल रहे हो ना? और उनका क्वेश्चन क्या है? लेट्स वेरीफाई योर आंसर एज वेल ना. लेट्स वेरीफाई योर. नहीं, मिस्टेक्स तो बहुत है मॉड्यूल में, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. मतलब बहुत मिस्टेक्स है. ओके, और उन्होंने कुछ कुछ मिस्टेक्स करेक्ट करके भेजे भी है बट उसके अलावा भी बहुत मिस्टेक्स है. सो 2x minus 3y is equal to 11
and 4x minus 11y is equal to 11. And according to you, x should be 3 and y should be 1. Let's verify your answer. Let's check it out. 2 into 3 minus 3 into 1 is equal to 11. Are you getting this? No. 6 minus 3, it is not 11. It is what? It is 3. So it is not 11. Yes, hand raise आया है तुम्हारा. I'll unmute you. हाँ बोलो. So 2x minus 3y is equal to 3 है. I'm so sorry. Yes, all right. Thank you. Okay, तो yes, हाँ तो फिर सही है. तो फिर सही है. 3, 3. All right. Next. 4x minus 11y. This is your 3. 11 into 1. It's 11 only, no? Yes, it's 11. Then this is 12 minus 11. Your answer is not verifying here. Miss. Verify. Actually वो सॉल्व किया तो आंसर अलग आ रहा है. इसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया तो मेरा आंसर रॉन्ग हो रहा है, उनका करेक्ट हो रहा है. लेकिन पूरा सम एक्चुअली सॉल्व किया तो उनका आंसर रॉन्ग लग रहा है. By which method you have solved? By matrix method or by regular method? जो उन्होंने दिया है वही सेम मेथड से किया. सेम मेथड से किया है. 2 minus 3, 4 minus 11. Okay, let me check. चलो ठीक है, सब लोग सॉल्व कर ही लेते हैं ना उसको. इसका डाउट क्लियर हो जाएगा. ऐसे क्वेश्चंस जनरली मैट्रिक्स मेथड से मत ही करो बिकॉज इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, नो. सो सॉल्व इट बाय रेगुलर वे, दैट इज साइमल्टेनियस सॉल्विंग, है ना. सो फॉलो दैट मेथड. एक मिनट. सो यस, लेट्स चेक इट आउट. क्या हो जाएगा? 2x minus 3y कैसे सिखाया था मैंने? डिटर्मिनेंट सिखाया था मैंने, है ना. 2, 4 minus 3 minus 11. Then delta x we had seen. Delta x is what? We take this in this place. 3, 11 minus 3 minus 11. Yes, x should be 0, right? Yeah, x should be 0, correct. Determinant देखते ही समझ में आ रहा है कि it should be 0. Delta y is what? This should be taken here. 2, 4, 3 and 11. All right. अब क्या हो जाएगा? Let's check it out. उनका भी गलत ही है यार. नहीं, उनका सही आया है. 0 and -1 आया है. What happened? Let's solve. Minus 22 minus of minus 12. So how much is this? Minus 22 plus 12. So it's going to be minus 10. This is what? Minus 33 minus of minus 33. So it's going to be 0. This is what? 22 minus 12. It's going to be 10. Sanyam, any doubt till this point? तुम्हारे doubt clear हो रहा है? Yes, got it. तो हमें find out करना है delta x upon delta. So it's 0 upon minus 10. So it's going to be 0. You might have done silly mistake somewhere. Delta y is 10 and delta is minus. So it's going to be minus 1 straight away. So y is minus 1, x is 0. All right. समझ में आई बात? हाँ, चलो कोई बात नहीं, कुछ तो कर रहे हो जिंदगी में. इसका प्रूफ है ये. डाउट्स आ रहे हैं मतलब कुछ कर रहे हो जिंदगी में, है ना. चलो ठीक है. ओके. Exactly. You can get that through simultaneous solving also. That is what I told him. वो ऐसे questions के लिए मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट्स का यूज मत करो. It is waste of time, है ना. चलो अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. ठीक है, देखो अगला चैप्टर अपन शुरू कर रहे हैं इक्वेशंस. ओके, अगला चैप्टर इज इक्वेशंस. पहले इक्वेशंस मीनिंग क्या है? ये वर्ड कहां से आया? इक्वालिटी, है ना. इक्वेट और यू कैन से इक्वालिटी. सो व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी? LHS should be equal to RHS, है ना. इक्वल कब बोलते हैं अपन किसी भी चीज को? जब हमें LHS एंड RHS इक्वल मिलते हैं. बीच में हमने अभी ऊपर एक इक्वेशन देखा, इक्वल टू 11. ये क्या है? इक्वल ना. इक्वल मतलब ये साइड और ये साइड क्या है? सेम है.
है ना. So that is what equality. That is what, therefore the chapter is what equation. तो मतलब पूरे चैप्टर में हमें क्या करना है, LHS एंड RHS को बैलेंस करना है, LHS एंड RHS को इक्वल करना है पूरे चैप्टर में, है ना. सो यस, दैट इज आवर टास्क. तो फिर इक्वेशंस मतलब क्या है, यस LHS should be equal to your RHS. LHS should be equal to what, your RHS. Then only you can call that as equation. Okay. तो फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं. इक्वेशन का मीनिंग समझ लिया सब लोगों ने. इक्वेशन, इक्वेट, इक्वालिटी. LHS should be equal to RHS. There should be balance on LHS and RHS. अब आगे बढ़ते हैं. अब रूट्स या फिर सॉल्यूशंस, इसका मतलब क्या है. ये वर्ड तुम लोगों को बहुत जगह पे दिखेंगे. व्हाट आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाय रूट्स एंड सॉल्यूशंस. जैसे कि मान के चलो अभी मेरे पास 2x + 1 = 0 है. इक्वेशन है ये. इज इट इक्वेशन? यस, इट इज इक्वेशन. कैसे पता चला? बाय दिस साइन आई केम टू नो दैट दिस इज व्हाट इक्वेशन. ओके. तो यस, रूट्स एंड सॉल्यूशन का मतलब क्या है. हमने इक्वेशन का तो मतलब समझा. क्या समझा हम लोगों ने इक्वेशन का मतलब? LHS एंड RHS बैलेंस होनी चाहिए, बोथ शुड बी इक्वल, है ना. ये इक्वेशन का मतलब है. अब जो वैल्यू, ध्यान से सुनो, जो वैल्यू मुझे LHS एंड RHS को सेम देगी, मतलब जो वैल्यू LHS = RHS देगी, वो क्या हो गया? रूट. वैल्यू which will give लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, उसको अपन क्या बोलेंगे? रूट. मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं वैल्यू विच satisfies the equation. Value which satisfies the equation, उसको अपन क्या बोलेंगे? रूट्स या फिर सॉल्यूशन. ओके. तो जो वैल्यू हमें LHS = RHS देगी, वो क्या होती है? उसका रूट होती है. अब चेक करके देखते हैं. यहाँ पे मान के चलो मैंने x = 1 लिया. चेक करो जरा. 2 × 1 + 1 = 0. इस साइड में मुझे क्या मिल रहा है? 2 + 1 = 0, 3 = 0. हुआ क्या? बैलेंस मिला क्या? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल मिला क्या? मुझे नहीं मिला. नहीं मिला ना हमें. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है. कैसे दोनों इक्वल है? दोनों इक्वल नहीं है. इट मीन्स व्हाट? x = 1 is not root, है ना. x = 1 is not root. ओके. अब अगला वैल्यू चेक करके देखते हैं अपन. x = -1. 2 × -1 + 1 = 0. क्या मिला हम लोगों को? -2 + 1 = 0. क्या मिला हमें? -1 मिला क्या? मुझे बैलेंस मिला क्या? LHS एंड RHS सेम मिला क्या? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम मिला क्या? नो, नो, नहीं मिला. इट मीन्स व्हाट? x = -1 is also not the solution, है ना. x = -1 is also not the solution. अब कुछ और ट्राई करते हैं. -½ ट्राई करते हैं, है ना. लेट्स ट्राई आउट -½ तो क्या मिल रहा है हम लोगों को? 2 × -½ + 1 = 0. So this and this will go. -1 + 0, sorry, -1 + 1 = 0, and I am getting 0 = 0. बन गया, मिल गया. LHS and RHS सेम. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आई गॉट सेम, है ना. जब मुझे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मुझे सेम मिलेगा, तब अपन उसको क्या बोलेंगे? रूट बोलेंगे. is not the solution, or you can call it as root. Is the solution, which you can call it as root. समझ में आई बात? रूट मतलब क्या होता है, सोल्यूशन मतलब क्या होता है. रूट एंड सोल्यूशन का मतलब होता है उस पर्टिकुलर वैल्यू ने मुझे क्या देना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल देना चाहिए. तभी मैं उसको क्या बोलूंगी? रूट बोलूंगी या फिर सोल्यूशन बोलूंगी.
ऑलराइट, नोट कर लो इस पार्ट को पहले, यहां तक सब कुछ लिख लो फटाफट एंड टेल मी व्हेनेवर यू विल बी डन. थोड़ा कोई लोगों को थोड़ा लल्लू पल्लू लगेगा, बट यस, नोट इट डाउन. ओके, इस चैप्टर पे ज्यादा ना वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं. डन. Malhar understood what is the root, what is the solution, what are the equations? Yes, understood. मल्हार रिप्रेजेंटेटिव है नॉन मैथ स्टूडेंट का, मैंने पहले ही बोला. मल्हार को क्वेश्चन जा रहा है मतलब सभी नॉन मैथ स्टूडेंट को क्वेश्चन जा रहा है, ऐसे समझ के चलो. ओके, मुझे अब उसका नाम याद है, इस वजह से मैं उसको स्पेसिफिक बोल रही हूँ. मल्हार, वेयर आर यू? अंडरस्टूड? कुछ कॉन्सेप्ट रिपीट करना है, यू कैन आस्क मी. यस डेफिनेटली यू कैन आस्क मी. आई नो कि 8 के बाद मैथ्स छूटना मतलब क्या होता है. मैंने देखे ऐसे स्टूडेंट्स. मल्हार अटेंड नहीं कर रहे क्या आज वो? लेट मी चेक. इरेगुलर मत रहो यार. आज अटेंड नहीं कर रहा है वो. तो कौन लेगा रिप्रेजेंटेटिव? भूमिका. भूमिका विल टेक दी पोस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ना. हाँ, वो सब चीजें मैं सिखाने वाली हूँ क्रिश. वेट, वो सब चीजें मैं सिखाने वाली हूँ. लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. ओके, वो सब चीजें हम सीखेंगे. जस्ट मुझे अभी क्या समझाना था, रूट एंड सोल्यूशन क्या होता है. ओके, फिर पहले स्टेप में मैंने मुझे क्या समझाना था, इक्वेशन क्या होता है. ओके, सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. ओके, डन. हाँ, वर्धन समझ में आया ना सब कुछ? गुड. चलो नोट इट डाउन फास्ट. आगे बढ़ते हैं अब. चले. ओके, अब इक्वेशंस हम लोग, इक्वेशंस तो वैसे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट हम लोग जो देखने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं 3 तरीके के इक्वेशंस. एक है अपना लीनियर इक्वेशन. यू विल गेट दिस फ्लो चार्ट इन नोट्स, बट फॉर नाउ यू हैव टू राइट डाउन लीनियर इक्वेशंस. अच्छा, लिखना है क्या तुम्हें अभी भी? अच्छा, ओके. आई थॉट यू आर डन. डन. ये दोनों चैप्टर के मिला के 4 to 5 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट. Five questions you can expect. Okay, equations, quadratic and third जो है that is cubic equations. तो linear equations and quadratic equation, ये टॉपिक जनरली लोगों का हुआ रहता है इसमें 9th और 10th में, है ना.
तो ध्यान दो थोड़ा, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इज डिग्री शुड बी 1। डिग्री मतलब क्या होता है ना? सबसे बड़ा क्वेश्चन, डिग्री मतलब क्या होता है? यहाँ पे डिग्री जो है 2, यहाँ पे डिग्री जो है दैट इज 3। सबसे मेजर क्वेश्चन, व्हाट इज डिग्री? व्हाट इज डिग्री? द हाईएस्ट पावर of variable in the expression. Degree is what? Highest power of variable in the expression. अब ये variable क्या है? What is variable? Variable मतलब x हो सकता है, y हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, वो भी डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि उसमें क्या वेरिएबल है. Okay, so degree means what? Highest power of variable in the expression. Okay, तो highest power linear equation में क्या होगा? 1. Highest power in quadratic equation क्या होगा? 2. Highest power in cubic equation क्या होगा? 3. Okay, तो अभी इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं. पहले इसके जनरल फॉर्म्स लिखते हैं, ठीक है? इसका जनरल फॉर्म है ax प्लस b इज इक्वल टू 0. इसका जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इसका जनरल फॉर्म है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0. ओके, सो लीनियर इक्वेशन में डिग्री 1 होता है, जनरल फॉर्म ये है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होता है, जनरल फॉर्म ये है. क्यूबिक इक्वेशन में डिग्री 3 होता है एंड जनरल फॉर्म ये है. डिग्री का मीनिंग मैंने क्या बताया था? व्हाट आई हैड टोल्ड यू अबाउट डिग्री? डिग्री इज व्हाट? हाईएस्ट पावर. हाँ, जो भी मैंने फॉर्मेट्स दिए हुए हैं उसमें डिग्री चेक करो वेरिएबल का. x इज द वेरिएबल, चेक करो. यहाँ पे डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, x 1 ही है ना, x रेज़ टू 1, x के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, तो x रेज़ टू 1. यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? ये 2 है, ये 1 है. हाईएस्ट कौन हुआ? 2 हुआ. सो हाईएस्ट पावर इज व्हाट? 2. सो डिग्री इज व्हाट? 2. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए. हाईएस्ट पावर इज द डिग्री. तो जनरल फॉर्म हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है. हाईएस्ट कौन है? 3 है. यहाँ पे A, B, C, D are constants. A, B, C, D are what? Constants. And X is variable. Variable का मीनिंग क्या होता है? वो चेंज होता रहता है. It varies. Variable means what? It varies. वो चेंज होते रहता है. ओके, तो फिर से एक बार सब कुछ रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो. हम 3 तरीके के इक्वेशंस देखने वाले हैं अपने चैप्टर में. फर्स्ट इज लीनियर इक्वेशन, सेकंड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड इज क्यूबिक इक्वेशन. ओके, लीनियर इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करना है? वेरिएबल का इक्वेशन का डिग्री 1 होता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन का डिग्री 2 होता है. क्यूबिक इक्वेशन में इक्वेशन का डिग्री 3 होता है. डिग्री का मीनिंग क्या समझाया मैंने? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. ओके, अब यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या है? ax प्लस b. तो x का पावर कितना है? 1, एंड दैट इज द हाईएस्ट वन, है ना. 1 हाईएस्ट है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में. उसको टैकल करने वाला, उसको बीट करने वाला कुछ है नहीं. ओके, नेक्स्ट जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx इज टू 1 प्लस c. अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रहा है तुम लोग को? 2. इट्स 2. क्यूबिक में हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रहा है तुम लोग को? 3. वेरिएबल का A, B, C, D are the constants. X is the variable. All right. Okay. समझ में आई बात?
समझ में आया सब कुछ? ये जो भी अभी तक मैंने रेड ब्लू ब्लैक पेन में जो भी लिखा है वो समझ में आया? नोट इट डाउन फास्ट. क्रिश, I'll come back to your doubt. What is difference between expression and equation? See, check it out. बताती हूँ मैं. What is difference between expression and equation? नाम में मीनिंग छुपा है उसका. Whenever I will write x cube plus 2x plus 8, this is expression. But if I write x cube plus 2x plus 8 equal to 9, this becomes equation. Whenever there is no equality sign or inequality sign, it becomes your expression. And this becomes your equation. Okay? Note it down fast. Let me know once you are done with the writing. भूमिका understood everything? फाउंडेशन में कैसे क्या? फाउंडेशन में सब है भैया, सब है. Everything is there in the foundation. पूरा 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 चकनाचूर हो जाता है दिमाग मैथ्स को पढ़ पढ़ के. इसकी कोई जरूरत नहीं. मैंने बोला ना, फर्स्ट क्लास में बोला, मैथ्स को कंटेंट वाइज मत देखो. मैथ्स को इट विल डेवलप योर लॉजिकल पावर, इट विल डेवलप योर एनालिटिकल पावर. नो अदर सब्जेक्ट कैन डू दैट. ओके, जो मैथ्स करता है. देखो तुम हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखो, बीबीए का एग्जाम ले लो, तुम अपना नॉर्मल कैट एग्जाम ले लो, कोई भी एग्जाम जहाँ पे आर्ट्स के एग्जाम में मैथ्स का कुछ लेना देना नहीं, बट स्टिल मैथ्स इज देयर. ओके, तो ये इसी वजह से होता है, बिकॉज बेसिक जो डेवलपमेंट होती है माइंड की, कैसी हुई है तुम्हारी डेवलपमेंट, वो मैथ्स से ही पता चलता है बेसिकली. वरदान, डन विद द राइटिंग? वरदान को पूछूंगी. Why Mallar is not there today? I don't know. ओके, जाए आगे. चलो डन. अभी देखो, लीनियर इक्वेशन के अंडर हम लोग दो चीजें पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज linear equations in one variable, and then linear equations in two variables. All right? Okay? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल मतलब तुम्हें सिर्फ x दिखेगा या फिर y दिखेगा या फिर कुछ वेरिएबल दिखेगा. एक ही वेरिएबल दिखेगा, एक ही वेरिएबल. नाम में ही लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, है ना? एक ही वेरिएबल दिखेगा. लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल मतलब हमें कितने वेरिएबल दिखेंगे? दो वेरिएबल दिखेंगे, है ना? मे बी एक्स वाई. कॉमनली तो वही यूज करते हैं अपन, है ना? एक्स वाई यूज करते हैं कॉमनली. ओके, linear equations in three variable, simultaneous equation. Mansi, simultaneous equation means what? What do you mean by simultaneous equations? Can you tell me what do you mean by simultaneous equations? चलो बताती हूँ, आगे आती हूँ मैं उस पॉइंट पे. वेट. So linear equation in one variable means what? It is only x या फिर y या फिर z, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, जरूरी नहीं हमेशा x ही हो, है ना? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मींस व्हाट? कोई भी दो लेटर्स रहेंगे हमारे पास, एक्स वाई रहेगा, ए बी रहेगा, कुछ भी हो सकता है, वाई जेड हो सकता है ना? कुछ भी हो सकता है. सो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ये दिखते कैसे हैं बताती हूँ. दिखते कैसे है? जैसे मैंने लिखा 8x plus y, सॉरी 8x
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x के अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? 9x प्लस 5y इक्वल टू 2। क्या क्या दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे? x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है ना? x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है हमें। ओके, तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, अब देखो 9 इज इक्वल टू 5x। क्या दिखाई दे रहा है? अकेला x दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना? यहाँ पे देखो 5x इज इक्वल टू 9y प्लस 8। क्या क्या दिखाई दे रहा है? x भी दिखाई दे रहा है, y भी दिखाई दे रहा है ना? तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अंडरस्टूड और नॉट? गेटिंग माय पॉइंट? यस। अब ना मैं कुछ इक्वेशंस तुम्हारे सामने रखूंगी, सेट ऑफ इक्वेशंस। यू विल बी क्लासिफाइंग देम एज लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। ओके, ये तीनों कैटेगरीज में तुम उसको कैटेगराइज करोगे। आइडेंटिफाई तो करते आना चाहिए पहले, ये कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, फिर आगे जाके अपन आगे वाली बात बोलेंगे ना। पहले आइडेंटिफाई करते नहीं आ रहा तो क्या मतलब बनता है? ओके, लिखो पहले इतना 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं, आधे मिनट में तो सही तो लिखना है। बड़े हो गए हम। आज सब शांत दिख रहा है, सॉल्विंग नहीं हो रहा है ना, इस वजह से शांत है ना? सॉल्विंग रहता तो मजा आता है ना, एकदम चार्ज रहते सब लोग। चलो फटाफट, चलो फटाफट लिखो, फटाफट सॉल्विंग करना है हम लोगों को, है ना? कुछ तो 10 मिनट का तो सॉल्विंग हो जाए एटलीस्ट, है ना? मैथ्स का क्लास अटेंड किया ऐसे तो लगेगा। डन? वरदान, वरदान का हो गया, मतलब सबका हो गया लिखकर। वरदान डन विद द राइटिंग? बोरिंग है, बोरिंग है, सच में बोरिंग है। वरदान डन विद द राइटिंग? गायब तो नहीं हुआ है ना लेक्चर में? हाँ है, लेक्चर में है, मुझे लगा गायब ही हो गया। चलो ओके, अब तुम लोग मुझे बताओ, बोलो, इज दिस क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्यूबिक? पावर में 2 है ना? हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है हम लोगों को? हाईएस्ट पावर दिखाई दे रही है 2, मतलब डिग्री 2 है। डिग्री क्या है इसकी? व्हाट इज द डिग्री? डिग्री इज 2। डिग्री 2 है मतलब कौन सा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलराइट, ऑलराइट। नेक्स्ट, 9x plus 2y is equal to 0. Tell me fast. लीनियर में स्पेसिफाई करो, 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल। डोंट ओनली मतलब सिर्फ उस पे मत ये करो। गुड गुड। लीनियर तो है, लीनियर तो है। कैसे लीनियर है? सिर के ऊपर क्या है इसके? 1, इसके ऊपर क्या है? 1, है ना? 2 1 से बढ़ता है तो ही हमें टेंशन होती है कि लीनियर नहीं हो सकता, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, तो 1 ही है। तो क्या है फिर ये? डिग्री क्या हो गया इसका? डिग्री इज व्हाट? 1 एंड इट इज व्हाट? लीनियर इक्वेशन। How many variables are able to see?
only two variables. So linear equation in two variables. All right. 8x plus 5 is equal to 0. Tell me fast, degree. And what kind of equation it is. Good. Good, good, good. Degree is 1. And what type of equation it is? Linear equation in one variable. Right? समझ में आ रही सबको बात? Non maths. Yes. Bhumika understood. Good. बोलो. Degree. Three. X के सिर पे 3 है ना? So degree is what? 3. What type of equation it is? Cubic. Yeah. Degree 3 है तो क्या हो जाएगा ये? Cubic equation. समझ में आ रही बात? Next. बोलो. Good. Degree is what? Highest power क्या दिखाई दे रहा है? 2. What kind of equation it is? What kind of equation it is? Quadratic. Very good. Okay. Next. X cube is equal to 1. Tell me. Good. Degree is what? 3. And what type of equation it is? Cubic. So समझ में आई बात? Cubic क्या होता है? Quadratic क्या होता है? Linear क्या होता है? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. ओके. अब अपन आज के क्लास में मतलब अभी जो बच्चा कुछ क्लास है 20 मिनट का, उसमें हम लोग फोकस करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. What if the equation has more than 3 power? अभी उसको ऐसे कुछ नाम तो नहीं है, बट हाँ algebraic expression को अपन polynomials बोलते हैं, but you don't call it as poly equation. Okay, simple सी बात है. So इसका कुछ ऐसे नाम नहीं है. Then we call it as 4th degree equation, 5th degree equation, 7th and so on. Okay, but अगर हाँ expression है तो उसको polynomial बोला जा सकता है. Okay. चलो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. हाँ सही तुम्हारा डाउट सही है. यहाँ पे मैंने ये एक एग्जांपल देना चाहिए. आई शुड पुट हियर वन मोर थिंग, x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. जस्ट एड वन मोर थिंग हियर. ओके, लीनियर इक्वेशन के अंडर 2 इक्वेशंस ऐड कर दो. आई मीन इसके नीचे ये एक ऐड कर दो. 2 वेरिएबल नहीं आते, इसमें एक ही वेरिएबल आएगा, इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं. ओके, ऑलराइट. कुछ प्रॉब्लम किसी को? एनी डाउट टू एनीवन? चलो अभी आते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पे. इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं ना. वेरी फर्स्ट टॉपिक, एक्चुअल टॉपिक अब शुरू हुआ है अपने चैप्टर का. अभी तक तो बस वार्म अप था, अब एक्चुअल एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी. चलो, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम टाइप 1 इज which of the following equation is not linear?
which is not linear. Very first option, you will be telling me the answer. Very first option, 2x plus 3 is equal to 7. Next is 4 by 3x. 7 by 2 is equal to 6 plus half x. Then it's x plus 1 by 2x is equal to 3. And this is none of these. Tell me. Okay. C answer is correct. D is not correct. देखो ध्यान दो, यहाँ पे तो x के सिर पे 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो लीनियर है ही, इट इज लीनियर, है ना। यहाँ पे x के सिर पे 1 है, x के सिर पे 1 है, इट इज लीनियर। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। क्या है अपने पास? x प्लस 1 by 2x इक्वल टू 3। अब x तो हम लोगों ने अभी तक नीचे कभी देखा नहीं। मैंने जब भी ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया, मैंने x को कभी नीचे लिखा है कि डिनोमिनेटर में लिखा है कि कभी भी? नो, आई हैवंट रिटन दैट x इन द डिनोमिनेटर। ओके, सो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? 1 by 2। यहाँ पे x raised to 1 तो है, लेकिन कहाँ पे है वो? ये तो पावर में है, लेकिन ये कहाँ पे? ये x डिनोमिनेटर में है ना। सो रिमेम्बर वन थिंग, a1 upon a raised to n is a raised to minus n. Now compare this 1 upon x here. 1 upon x raised to 1 is what? X raised to minus 1. है ना? It becomes what? X raised to minus 1. So ये x raised to क्या आया? minus 1 आया, equal to 3. प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम क्या हो गई? -1 प्रॉब्लम कर गया ना। माइनस, रूट, फ्रैक्शन, ये सब चीजें हमें नहीं चाहिए लीनियर में। ओके, ये सब चीजें हमें नहीं चाहिए लीनियर में। -1, -2, 2 by 3, 3 by 2, 4 by 3, ये सब सिचुएशंस हमें नहीं चाहिए लीनियर में। ओके, सो देयरफॉर दिस इज नॉट गोइंग टू बी योर लीनियर इक्वेशन। Yes, that is the next point which I am going to discuss. It's x plus 1 by 2x is equal to 3. अगर इसको हम लोगों ने LCM लिया, इसका हमने अगर LCM लिया तो क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को? Yes, LCM क्या होता है? सारे डिनोमिनेटर्स सेम कर दो, या फिर LCM नहीं समझ में आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलो। 2x into x, it's going to be 2x square. 1 into 1, it's going to be 1. 1 into 2x is going to be 2x is equal to 3. 2x into x, 2x square. 1 into 1, 1. 1 into 2x, 2x. What is this? 2x square plus 1 is equal to 6. क्या बन गया ये? क्या बन गया ये? ये तो बन गया क्वाड्रेटिक। क्या बन गया ये? क्वाड्रेटिक। तो चाहिए क्या हमें? ये नहीं चाहिए। हमें किसके बारे में बोला है? नॉट लीनियर के बारे में बोला है, जो लीनियर नहीं है। तो ये लीनियर कहाँ हुआ फिर? ये तो क्वाड्रेटिक हुआ, है ना। सो इस क्वेश्चन के नीचे एक नोट लिख लो। नोट इज व्हाट? फॉर इक्वेशन टू बी लीनियर, x should not have or else x should have power as 1 and not other than 1, like -1, √2, 2 by 3, 3 by 2, ऐसा कुछ सिनारियो हमें दिखना नहीं चाहिए। -2, ओके, सिर्फ 1 मतलब 1 ही चाहिए, ये ऐसा कुछ सिनारियो नहीं दिखना चाहिए हम लोगों को। ओके, सो फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं ये चीज।
हमें क्या पूछा है उन्होंने? What they have asked us to find out the equation which is not linear. Not linear मतलब जिसका पावर, जिसका हाईएस्ट पावर 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो देखो ये x⁻1 है, ये x⁻1 है, ये x⁻1 है, तो इसमें कोई डाउट नहीं, ये तो सब लीनियर है। बट यहाँ पे yes, in this option, in C option, what is happening? x plus 1 by 2x, इस 1 by x को हम कैसे लिख सकते हैं? x⁻1 लिख सकते हैं। तो ये -1, -2, -3, √2, 2 by 3, 3 by 2, 1 by 4, 1 by 5, ऐसा कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज इनको सॉल्व करने के बाद इनका एलसीएम लेने के बाद इक्वेशन इज नो लॉन्गर लीनियर, इट बिकम्स समथिंग एल्स। Okay, and therefore we don't want this x in the denominator, never. Okay, in case of linear. So this C option is correct one. This equation is not linear. How many of you have not understood this particular question? How many of you have not understood this particular question? Not understood, huh? Bhumika? बोलो। गुड गुड। बाकी लोग कोई है? वरदान अंडरस्टूड? वरदान का कंसंट्रेशन थोड़ा से हिल जाता है बीच बीच में, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है फिर, है ना? If x is in denominator, then it is not linear. Yes, x is in denominator, it is not linear. But yes, you have to simplify it. You have to simplify it. Okay? एक एग्जांपल देती हूँ मैं तुम्हारे सामने, जहां पे x डिनोमिनेटर में है बट स्टिल इट इज लीनियर। 2 मिनट दे दो मुझे। x इज इन डिनोमिनेटर बट स्टिल इट इज लीनियर, तो हमें एलसीएम लेके पता चलता है एग्जैक्ट सिचुएशन। वरदान, वरदान, अरे मुझे अच्छा लगता है जब तुझसे कंफर्मेशन मिलता है तो। इट्स नॉट दैट यू आर वीक स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं है। लोड मत ले, लोड मत ले। हर एक क्लास में मेरे 1-2 टारगेट रहते हैं, टेंशन मत ले। यस, what if there is x square in numerator and x in denominator? Wait, I'll solve all your doubts. Done with this? चलो, अब सपोज तुम्हारे सामने ऐसा कुछ इक्वेशन है, क्या ये लीनियर है? एलसीएम लेने के बाद पता चलेगा। कैसे? देखो, 2/1 plus 1/x is equal to 1. Okay, 2 into x, 2x, 1 into 1, 1, 1 into x, x is equal to 1. All right, फिर क्या आ जाएगा? ये 2x plus 1, ये x यहाँ पे लेके जाओ, x आया, है ना? तो क्या मिल गया फिर हमें? 2x minus x is equal to, sorry, plus 1 is equal to 0. तो क्या हो जाएगा ये? x plus 1 is equal to 0. लीनियर हो गया ना ये? लीनियर हो गया। Okay, so that depends on the situation, but remember one thing, whenever you have power other than 1, be careful. Okay, be careful. So yes, understood this? So it is what? Linear. अब तुम लोग मुझे बताओगे ये इक्वेशन लीनियर है क्या? टू अपॉन एक्स 1/x is equal to 3. चलो बताओ ये इक्वेशन लीनियर है क्या? क्वाड्रेटिक? नो। क्या करेंगे? 2 plus 1 अपॉन x
is equal to 3. What is this? 3 upon x is equal to 3, है ना? तो क्या हो जाएगा फिर ये 3 is equal to 3x. क्या हो गया फिर ये 3 minus 3x is equal to 0. तो है ना x के सिर पे 1. So it is linear. It is what? Linear. अब कोई कोई लोग क्या सोच रहे पता है? कोई कोई लोग सोच रहे हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x into 1 x स्क्वायर, ऐसा सोच रहे, बट इससे भी क्या होगा? यस, ये क्या आएगा? 3x अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, है ना? क्या आएगा ये? यहां से देखो 3x इक्वल टू 3x स्क्वायर आएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा ये 3x स्क्वायर माइनस 3x, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा ये x माइनस 3x माइनस 1, सॉरी 3, है ना? अल्टीमेटली यही मिला ना हम लोगों को. ओके, सो यस, इट इज गोइंग टू बी लीनियर ओनली. इट हैज टू बी लीनियर. ऑलराइट, चेक करो, ये कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है जो मैं तुम लोगों को दे रही हूँ, एंड प्लीज नोट इट डाउन फास्ट. Understood everyone? Yes. On behalf of all non-math students, भूमिका, बाकी को भी आंसर करना है यार. नहीं समझा है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा टॉर्चर करूंगी मैं, बार बार पूछूंगी, बट यस, डोंट कीप योर डाउट्स एज इट आउट. अनुजा, अंडरस्टूड ना? मैथ्स पसंद नहीं था तुझे, समझ में आया ना? Okay, chalo, one more question. Let's do one more question. Which of the following equation, second question, is not linear? A option, x plus 3x is equal to 0. B option, x plus root x is equal to 3. C option, root 7x plus 4 root 7 is equal to 3 root 7. And D, none of these. देव, मुझे लगा देव ने एग्जिट किया होगा अब तक. बड़ी जल्दी बोर हो जाता है वो. यस, काफी सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, विच इज ऑप्शन बी. मानसी, डी. हाउ कम डी? हियर आई एम हैविंग रूट एक्स. नो, रूट एक्स चलेगा क्या? ये रूट एक्स चलता है क्या? रूट एक्स नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं चलेगा ये रूट एक्स, है ना? बिल्कुल नहीं चलेगा ये रूट एक्स. मैंने क्या बोला? 1 के अलावा कोई भी आड़ा टेढ़ा पावर नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे. ओके, कोई भी आड़ा टेढ़ा पावर दिखना नहीं चाहिए हमें यहाँ पे. तो ये तो बिल्कुल सही है. दिस इज व्हाट 4x इज इक्वल टू 0. तो ये x के सिर पे 1 है, तो ये तो लीनियर है ही, है ना? यहाँ पे चले आओ, ये x के सिर पे 1 है, तो ये तो लीनियर है ही. भले ही बहुत सारे रूट जमे हुआ है यहाँ पे, रूट 7 रूट 7 रूट 7, बट नंबर को है ना, x को तो कुछ हाथ नहीं लगा रहे वो, x को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे वो, x तो 1 ही है अपने सिर पे लेके, है ना? x के सिर पे क्या है? 1 है. वो है क्या स्क्वायर रूट के अंदर? नो, स्क्वायर रूट के अंदर नंबर्स है. नंबर्स अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो हमें कोई टेंशन नहीं. नंबर्स है ना स्क्वायर रूट के अंदर, रूट 7 रूट 7 रूट 7. x है क्या रूट के अंदर? नो. सो दिस इज ऑल्सो लीनियर. बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उन्होंने x को ही रूट के अंदर डाला है, तो ये नहीं चलेगा भाई साहब. इट इज नॉट लीनियर, है ना? ये नहीं चलेगा हमें. कैसे? चेक आउट.
x प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 3. नाउ इसको लेके चलो x माइनस 3 इज इक्वल टू रूट एक्स. अब स्क्वायर करो दोनों साइड पे. या अगला वाला पार्ट तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं, ये जो पार्ट मैं बता रही हूँ ना इसकी कोई जरूरत नहीं. रूट एक्स स्क्वायर इज x, है ना. तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9. कहां से आया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9? कहां से आया? x माइनस 3 होल स्क्वायर क्या होता है अपना? a माइनस बी होल स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर क्या है? ये x स्क्वायर. 2ab, a क्या है? x, b क्या है? 3 प्लस b स्क्वायर, है ना. तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू x, है ना. समझ में आया? तो ये तो क्वाड्रेटिक बन गया ना. फिर क्या बन गया? ये क्वाड्रेटिक बन गया. ओके. बट यही से हमें समझ में आता है कि यार यहाँ पे रूट एक्स से कुछ बात जम नहीं रही, है ना. रूट एक्स के कारण ये हमें कुछ प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रहा है, तो हमने इसको थोड़ा आगे सॉल्व किया तो वो क्वाड्रेटिक निकल गया. ओके. सो दिस इक्वेशन इज नॉट लीनियर. अंडरस्टूड एवरीवन? जो लोग डी आंसर दे रहे थे उनको कुछ डाउट है? बोलो जल्दी. इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? उनके अलावा जिन्होंने डी ऑप्शन आंसर दिया था, उनके अलावा किसी को कोई डाउट है? पक्का? डन? शुड आई स्टॉप हियर नाउ? ओके. कुछ प्रॉब्लम है आज के क्लास में? आज के क्लास में एनी डाउट? एक बार अच्छे से रिवाइज करो. ओके. अभी पूरा मैथमेटिकल पार्ट है ये. इक्वेशंस चैप्टर पूरा मैथमेटिकल पार्ट है, तो एक बार रिवाइज करो सब कुछ घर पे. कल अपन काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. सिंपल क्वेश्चन है बट यस वी हैव टू सॉल्व ना. एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी थोड़ा बहुत कर लेंगे अपन. डन? कुछ डाउट हो तो बोलो, कुछ इश्यूज हो तो बताओ आज के टॉपिक को लेके. ओके. सो रिवाइज करो. टाइम टू टाइम रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार रिवाइज करो. कल की क्लास शुरू होने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लो. देन यू विल कम टू नो द ओके वी कैन सॉल्व इक्वेशन यूजिंग बोथ मेथड. हाँ यस क्रिश, तुम्हें कोई जाके मेथड नहीं पूछेगा तूने कौन से मेथड से इक्वेशन सॉल्व किए, ये कोई नहीं पूछेगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके. कोई नहीं पूछेगा कि तूने कौन से मेथड से इक्वेशन सॉल्व किए थे. दे विल जस्ट आस्क यू व्हाट आंसर, है ना. करेक्ट आंसर टिक करो बस. दैट्स इट. डन? डाउट हो तो बोलो.